आरव शर्मा, अग्नीश, ऐश्वर्या, Present, sir. आकांक्षा, अक्षिता, Present, sir. अमन, Present, sir. you were absent in the last class, Aman. Yes, sir. What happened with that? सर मैं मैसेज नहीं देख पाया था क्लास का। बेटा शेड्यूल आपके पास है, टाइम टेबल आपके पास है, एक उसके हिसाब से प्रिपेयर करा करो बेटा। सर उसी दिन स्टार्ट हुई थी इसलिए। चलो आर्यन, प्रेजेंट सर। आर्यन, आर्यन सिन्हा प्रेजेंट। आयुष, प्रेजेंट सर। भव्या, Present, sir. दमन, दमन आहूजा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। देवांश, देवांश पार्थी, दृशन, दृशन, गौतम, Present, sir. जयंत, Present, sir. कनक, Present, sir. कुंजल, Present, sir. लक्ष्य, प्रेजेंट सर। लिनॉय, Present, sir. प्रेजेंट। प्रज्ञा, Present, sir. ऋषभ, Present, sir. शाश्वत, प्रेजेंट सर। संकेत, Present, sir. श्रेया, श्रेया मिश्रा, सिद्धांत शर्मा, Present, sir. right? And I think we have discussed some question. First question I think I have discussed. So today first I'll discuss the properties of union first. The first topic of today is properties of union. Properties of union. And the union symbol is this one. Union, इसका मीनिंग आप निकाल लो नॉर्मल अलजेब्रा में प्लस साइन, राइट? सो इस प्लस को माइंड में रखना. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दिस इज A union B will be equal to B union A. In normal example, if we add 2 plus 3, this will give you 3 plus 2. The answer is same, beta. 2 plus 3 is equal to 3 plus 2 will give you the same answer. And this is known as commutative. If A plus B equal to B plus A, this is known as commutative law, commutative property. So this is the property, this property known as commutative property. इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि A plus B is equal to B plus A. Union means we are adding two sets, we are combining two sets, right? Number 2 is it this A union B union C. This is equal to A union B union C. This is known as associative property. Associative property. इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो 2 plus 3 plus 5 is equal to 2 plus 3 plus 5. आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है? नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी इज A union 5. What is the meaning of 5, beta?
What Empty set. Empty set. empty set or zero. Normal number में हमने zero मान लिया, suppose करो. So a number is added with zero will give you what beta? Sir, A. Zero. Sir, A. यानी that number is your answer. Right beta? इसे बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी और बुक में क्या दे रखा? लॉ ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. नेमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए. नंबर 4, ए को ए के साथ ऐड करते हैं. अब नॉर्मल अलजेब्रा में अगर आप ए के नंबर को ऐड करोगे Sir, तो A आएगा डबल आंसर. यहाँ पे ए आएगा, बिकॉज इन सेट्स वी कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स बेटा. ठीक है ना, अगर ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो आंसर ए ही आएगा. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल के लिए मैंने आपको बताया था यू के साथ ये ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दोगे आप, और यूनियन ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. इसका एग्जांपल कैसे देखो? इफ वी टेक अ यूनिवर्सल सेट, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ये 0 1 2 3 4 dot dot up to 9. In the whole universe we have only these digits beta, right? And a is a equal to 1 3 5 only. So what is the union between universal set and given set A? So union means combining these two sets beta, and combining, after combining no digits, no element can be repeated beta. ये ध्यान रखना है सेट्स की major property 1 2 3 dot dot up to 9. So this is the complete universal set. So answer is universal set union any set will give you universal set, right? The next is properties of union. Next topic is properties of intersection. Intersection is inverted U, and in normal algebra इसको relate करोगे multiply से. Normal algebra related with the multiplication sign, or this plus sign means the word or, this multiplication sign means and. अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आगे के टॉपिक्स में आपको इजी रहेगा ये सब चीजें, 11th के भी टॉपिक में भी और 12th के टॉपिक में. So again first property beta, A intersection B is equal to B intersection A. सेम वे बेटा जैसे 2 into 3 किया आपने तो 3 into 2 के इक्वल आएगा. नेक्स्ट इज नंबर 2, A intersection B bracket intersection C, A intersection B intersection C. This is known as again वही commutative. Next is associative. Third is A intersection phi. देखो अगेन बेटा, अगर A is a number multiplied with 0, so any number multiplied with 0 will give you what? 0. बोलो बेटा. Yes. Yes, sir. So this is phi. तो बेसिकली हमें क्या देखना है, मैं रिलेट करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सिंबल आपके थोड़ा सा हेल्प करेंगे. सपोज करो आपको कोई प्रॉपर्टी रिकॉल नहीं है तो नॉर्मल अलजेब्रा तो आपने पढ़ाई है टिल 10th बेटा, उसी से रिलेट करके आप और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है ना. ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन गिवन सेट, दिस इज इक्वल टू ए. कॉमन क्या है? यूनिवर्सल सेट. इसी एग्जांपल में लेंगे बेटा इन दोनों में, दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग कॉमन यानी इंटरसेक्टिंग एलिमेंट 1 3 5, 1 3 and 5. सो दिस इज माय आंसर. इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या आएगा बेटा? इज इक्वल टू 1 3 5 एंड विच इज योर सेट ए.
So that's why universal set intersection with a given set will give you a given set, right? And the most important property of this is that is known as distributive property, means जिसमें intersection and union दोनों होता है. The next one is, this is fourth one, then fifth one, A intersection B union C. अब इसको पहले एक बार नॉर्मली लिख लेते हैं अलजेब्रा की फॉर्म में, A इंटू बी प्लस सी. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, A इंटू बी आएगा बेटा, प्लस A इंटू सी आएगा. इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? नॉर्मल अलजेब्रा, Yes, sir. right? So according to this, now convert this expression in sets बेटा. इस एक्सप्रेशन को अब सेट में कन्वर्ट करो. तो इस क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, राइट? इस प्लस साइन की जगह आ जाएगा यूनियन. नाउ ए क्रॉस सी इज ए इंटरसेक्शन सी. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आपने अलजेब्रा में भी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पढ़ा था और यहाँ पे सेट्स में भी इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव ही है. सो आपको मैंने इससे रिलेट करके बता दिया है. इन केस अगर आप ये प्रॉपर्टी लर्न नहीं है तो नॉर्मल अलजेब्रा में आप ध्यान रखो इसको, इसका क्या मीनिंग था और उसी को ही लिख दो. आपको बस क्या ध्यान रखना है, दिस क्रॉस मींस इंटरसेक्शन साइन एंड और आपका प्लस साइन मींस आपका है यूनियन. बस ऐसे याद रखो. इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन इन फ्यूचर आप सॉल्व कर लोगे इसे. ठीक है बेटा? So these are the properties of union and intersection. The next is, अब आप आ जाओ बेटा. रेस्ट तो मैंने आपको टॉपिक सारे लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था. कोई डाउट हो तो बताओ बेटा. हमने डिस्कस किया था यूनियन, देन हमने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन, देन वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंस बिटवीन टू सेट A minus B and B minus A. These were the topic we have discussed in the last classes, right? Now, and the first question we have already discussed, beta. Now I'm taking question number 2, exercise 1.4, question number 2. What is this, beta? A is equal to, question number 2, given set A is AB and given set B is ABC. आपसे पूछा है is A this symbol B. What is the meaning of this symbol beta? Belongs. Subset. Subset beta. Belongs का साइन ये था बेटा, right? This is the symbol of belong. So first is A is a subset of B, and other thing is A union B is equal to what? So what is the definition of subset? A is a subset of B means every element of set A belongs to set B, then it is known as A is a subset of B. ठीक है? तो देखो A belongs to A and this A belongs to B also. ठीक है? तो आपको क्या लिखना है? यहाँ लिखना है since A belongs to A implies A also belongs to set B. B belongs to set A, also B belongs to set B. So this implies A is a subset of B. Yes, this is the answer. Right? Now next is A union B. So now A union B is equal to, इन दोनों सेट का यूनियन करते हैं तो this is equal to A, B, C. And this is equal to set B. So my answer और my property what बेटा? Now the question is, जो आपको जो important point है, जो आपको आगे question में use होता है, if A is a subset of B, then what is A union B equal to? This is a question also. क्या आंसर आना चाहिए बेटा आपके अकॉर्डिंग? अब नाउ Sir, B. B, right? तो इस ये एक तरीके से एक प्रॉपर्टी होगी बेटा. नाउ रिमेंबर दिस एज ए प्रॉपर्टी. इफ A is a subset of B, then A union B equal to what? It is B. ठीक है? Now this become one marker question.
If A is a subset of B, then what is the value of A union B? तो आपका आंसर अगर आपने B लिखा तो you will get the full marks, और आपने इसके अलावा कुछ भी लिखा तो आपको नहीं मिलेगा. राइट बेटा? इज दिस क्लियर बेटा? बोलो. अब देखो अगला क्वेश्चन यही है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है. देखो यही. In the third question, if A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? This is the answer बेटा. बोलो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 and 3 is clear to all of you, Yes, sir. right? Now the fourth question is what? See, in fourth question, given set A, B, C and D, we have 4 given sets, and in this we have to find, अच्छा okay, it is, we have 7 parts बेटा. ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर लोगे आप, क्योंकि सारे यूनियन है. अगर आप कहते तो कोई क्वेश्चन में करके बताता हूँ बेटा. बोलो. No, नॉर्मल sir. क्वेश्चन. विल यू बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन बेटा? 4, 5, 6. Yes, sir. ठीक है, मैं फिर भी आपका एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ. देखो सॉल्व करने की, कैसे सॉल्व करना है. सपोज इन क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट आई राइट व्हाट इज गिवन. Question number 4, set A. This is given 1, 2, 3, 4. Set B. This is 3, 4, 5, 6. Set C. Set C is 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Set D. It is 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Right? So, suppose, like I'm taking third part first. Third part, they're asking B union C. So we have to combine B set and C set. Beta. What will be the answer, beta? Bolo beta. What will be the answer of B union C? 3 to 8. 3 to 8 or 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. और अगर मैं इसमें लेता हूं अब 6th part, this is A union B union D. अगर आप एक बार में कंबाइन नहीं कर सकते बेटा, तो आप चाहो तो पहले A यूनियन B का कंबाइन कर लो, जो आंसर आएगा उसको D के साथ कंबाइन करो. तो अगर आप एक बार में कर सकते हो तो वो भी ठीक है, और 2 बार में कर सकते हो तो वो भी ठीक है. ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए. सो A, B एंड D को कंबाइन करना. सो इन दिस वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड हियर वी हैव 4, 5, 6. सो 1 to 6 आ गया हमारे पास. उसके बाद आ जाओ D में हमारे पास 7, 8, 9, 10. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर है यहाँ पे, तो 5, 6. देन 7, 8, 9, 10 इधर है. 7, 8, 9, 10. दिस इज माय आंसर. A union B union D. Question number 5. Find the intersection of each pair of sets of the question 1 above. आपको हर का इंटरसेक्शन निकालना है, ईच पेयर का. तो इसका मतलब है, अगर मैं पहला इंटरसेक्शन बोलूं A इंटरसेक्शन B, व्हाट इज द आंसर बेटा? व्हाट इज द आंसर? A इंटरसेक्शन B. सॉरी बेटा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. 3, 4. 3, 4. Intersection means beta common between these two sets. So we have 3 and 4 common element, right? अब अगर मैं बोलता हूं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, आप बोलो इसका मतलब है तीनों में कॉमन. बताओ. 5. Sir, Only 5. 5. 5, right? और अगर अब मैं बोलूं B इंटरसेक्शन D, what is this? Sir, 5. Again 5. Now B intersection C intersection D, this is equal to what? Sir, 5. Again 5. Yes.
right? And now C intersection D equal to what? 7. 7, 8. 7 and 8, 7 and 8. right? This is the answer. So, but Okay, we have now to do question number 1. Intersections of all parts of question number 1. oh, 1 second. Find the intersection of each pair of set of the question number 1. Okay, कोई बात नहीं, आप ये कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं इसको भी Yes, डिस्कस sir. कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 का ही इंटरसेक्शन निकालना है. इसमें यूनियन था, अच्छा इसमें ये तरह किया, ठीक है. तो लाइक मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा. अगेन, so first we have to write set builder form in roster form. So A is in the third part, x is a natural number and multiple of 3. Natural number भी होना चाहिए और multiple of 3 होना चाहिए. तो 3, 6, 9, 12 dot dot dot, right? And B set is x is a natural number less than 6. 1, 2, 3, 4, 5. This is the B set beta. Now A intersection B is equal to what beta? बोलो भाई. What is the common between these two sets beta? Only 5. only 3. only 3. So answer is 3. But as the question given, the given sets are in set builder form. So your answer should be in the set builder form. So write this answer in set builder form. How you can write beta? Bolo. Set of X all is x, x is equal to 3. X equal to 3. And this X belongs to what beta? Natural number. Yeah. This is the set builder form. Right beta? वैसे तो एक ही मेंशन था, हम ये नहीं लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने आपको सेट्स में बताया इट शुड बी वेल डिफाइंड. तो हमने इसे वेल डिफाइंड किया है, बिकॉज 3 इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर ऑल्सो, 3 इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर ऑल्सो, राइट? 3 is a part of natural number, but we are talking about the natural number, so we have to mention that this 3 belongs to natural number. Clear beta? Yes, sir. Okay, now अब आप ट्राई करो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं बोल रहा हूं और उसका आंसर चेक करना बेटा पीछे आप अपने आप. मैं आपकी बाय नेम आपसे पूछूंगा कि क्या आंसर आया है. मार्क करो क्वेश्चन नंबर 6, 6th part, 8th part, 6th part, 8th part. Question number 7. Question number 7, third part. करो बेटा, पहले 3 क्वेश्चन करो आप. In this question, which of the following pair of sets are disjoint? So again, beta, same, first 5 and 6 natural number. So So let these it are be not. B. So we have A intersection B is equal to 5. आ रहा है बेटा? अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं आता, then only we can say that the given pair of sets are disjoint sets. This is the definition of disjoint sets, beta. Disjoint sets. And in 12th, the name of this is become exclusive. ध्यान रखना बेटा ये, ठीक है? Exclusive, explicit. These are the words we will use in class 12. Meaning is same. Exclusive, explicit. So in this, the first part is a pair of disjoint set beta. No. Is this a pair of क्यों? A intersection B कितना आ रहा है? 4. 4. So
This is not equal to 5, so answer is no. No, it is not a pair of disjoint set. And in the second part, beta, A
नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट को लाइफ में समझना है, क्या मतलब है इसका. इन योर क्लास सपोज वी हैव 40 स्टूडेंट एंड आई हैव टेकन अ वन नेम, एनी वन नेम, सपोज करो अमन तोमर इज द जीनियस स्टूडेंट, राइट, इज द जीनियस स्टूडेंट. तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू अमन तोमर. तो एक्चुअली मैंने क्या किया है बेटा, अब मुझे मैथमेटिकली इससे रिलेट करो बेटा. देखो व्हाट आई हैव डन विद दिस अमन तोमर बेटा, मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि अमन तोमर इज ए मैथ्स जीनियस. ठीक है या नहीं है भाई, मैंने सही मारा है नहीं बोला. अमन आर यू देयर बेटा? अमन तोमर जी आप हो बेटा? तो मैथ्स आपका अच्छे सब्जेक्टों में है या मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है या नहीं है? सर है बेटा. और आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हो? यस सर. ठीक है, फिर तो मैंने सही स्टेटमेंट बोली बेटा. अमन तोमर इज ए मैथ्स जीनियस, राइट. और मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो जीनियस भी हो जाएगा, अगर नहीं है तो. ठीक है, पर हो जाएगा, राइट. तो अब मुझे बस ये बताओ, मैंने ये एग्जाम्पल लिया बेटा, मैंने क्या किया मैथमेटिकली. इसको मैंने देखो डेफिनेशन लिखा, कॉम्प्लीमेंट दिया अमन को मैंने, दैट स्टूडेंट इज अ मैथमेटिक्स जीनियस. तो मैंने एक्चुअली करा क्या है उसे, मैंने अमन तोमर को रेस्ट क्लास से बाहर कर दिया है. क्या किया बेटा, मैंने उस क्लास में से मैंने अमन तोमर को पिक किया और उसको साइड कर दिया, राइट. तो जो रेस्ट बचे हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट पार्ट है. तो यूनिवर्सल सेट मींस द होल 11th A क्लास, राइट. ए मींस ओनली अमन, राइट. तो इसमें से मैंने क्या किया, ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए. यू माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट अदर देन ए. क्लियर बेटा. तो मैंने ए को बाहर कर दिया, जो बचा है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट, यानी मैंने भीड़ में से अमन तोमर को साइड कर दिया. तो जो बचे हैं वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी इतने लोगों में से एक ही बंदा मुझे मिला है जो मैथ्स में जीनियस, राइट बेटा. तो जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो इसका मतलब आप डिफरेंस कर रहे हो. ठीक है, इसीलिए आपको मैंने यहां बोला था कि चलो देखो अब यहाँ पे there are some properties. देखो properties of complement sets, properties of complement. First one, complement of complement. चलो पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रॉपर्टीज पे बाद में आता हूँ. सपोज यूनिवर्सल सेट, दिस आई हैव टेकन, this I have taken 0, 1, 2, 3 up to 9. All the digits I have taken from the universe as universal set. And A मैंने ले लिया बेटा आपका 1, 3, 5, 7. Only this. So what is A complement? This is U minus A. तो आंसर बोलो बेटा, क्या आएगा इसका आंसर? 0, 2, 4, 6, 8, 9. 0, 2, 4, 6, 8, 9. Right? Now this is A complement equal to 0, 2, 4, 6, 8. Now this is complement. Now again I am telling you, find the A complement of a complement. चलिए अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. बोलो भाई क्या आंसर आएगा? 1, 3, 5, 7. 5, 7. 1, Right? 3, 5, 7. So this is equal to what? A. So A. first property is complement of a complement equal to original A, original set. Clear बेटा? Yes बोलो sir. भाई. Yes, sir. Right. Now the second property, A union A complement. देखो ये रहा आपका A and this is your A complement. इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो this will be equal to what? Universe. Universal set. भाई इन दोनों को मिला दूंगा, यानी आपके इन दोनों को मिला दिया तो आपका यूनिवर्सल सेट आ गया. यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट इज थर्ड, A intersection A complement. Now what is the common between A and A dash? 5. So nothing. Hi. Nothing. 5. Correct. Now fourth one,
what is the complement of null set in this case? Universal. Universal center. Set. Correct. Now, fifth one. What is the complement of universal set? Null set. Null center. Empty Right? center. Empty set. Correct, beta? Now, the most important one. This will be useful in your JEE exam, CBSE 12th exam, board exam. So this is what? A union B whole complement equal to A complement intersection B complement. This is the first part of B. Next is A intersection B complement is equal to A complement union B complement. You have to remember these two as De Morgan's law. आपको ऐसे याद रखना है, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. आपका प्रोबेबिलिटी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, वेन डायग्राम से रिलेटेड, उसमें आपको ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, आपको समझ में भी आनी चाहिए कि ये क्या मतलब. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. देखो आपके दो सेट लेता हूं, ए बी वगैरह. ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा इसको समझाने के लिए. टेकिंग एग्जांपल, ए मैंने लिया आपका 2 3, बी सेट ले लिया मैंने बेटा 3 4 5. ठीक है, और यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स, इसको अंडरस्टूड भी मानो बेटा. अगर मेंशन नहीं किया तो यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स वी हैव ओनली 0 1 2 अप टू 9, बिकॉज इन नंबरों से ही सारे नंबर बनते हैं बेटा, इन डिजिट से 0 1 2 3 9 से ही आपके वर्ल्ड के जितने भी नंबर पॉसिबल हैं वो सारे बनते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट थिंग इज, मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये मुझे वेरीफाई करना है, डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट ए यूनियन बी. तो फर्स्ट फाइंड आउट ए यूनियन बी. What is the union between A and B? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 and 5. Right. Now A union B whole complement. Complement means हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो बेटा, तो ऑब्वियस मीनिंग है इसका. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस दिस. इसका क्या मतलब बेटा? यूनिवर्सल सेट 0. माइनस ए यूनियन बी. दिस इज इक्वल टू व्हाट? आपका आया 0 और बोलो बेटा 1, 1, फिर 6, 8, 6 7 8 9. 8 9. Right. So this is your LHS part beta. LHS part. Now come सर to यूनिवर्सल सेट ओनली 0 से 9 तक ही होगा हमेशा? हमेशा बेटा. कई बार होता है बुक में मेंशन नहीं है बेटा, तो यू हैव टू टेक दिस यूनिवर्सल सेट. ये अंडरस्टूड है, एक तरीके से समझ लो, इस तरीके से अंडरस्टूड है. आई हैव रिटन दिस 5 बेटा. व्हाट इज द साइन ऑफ दिस बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. बट मैंने तो मेंशन नहीं किया बेटा, बिकॉज हमने ये अभी तक अपनी लाइफ में पढ़ा है कि अगर साइन इज नॉट मेंशन इट मींस इट इज पॉजिटिव. राइट. तो उसी तरीके से ये अंडरस्टूड है, इफ द यूनिवर्सल सेट इज नॉट गिवन इट मींस दिस इज इन केस ऑफ नंबर्स बेटा. कई बार नहीं होता बेटा, आपको क्वेश्चन को पहचानना है. ए और बी दोनों नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट इसका यही होगा. अगर ये कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में अगर ए और बी में डबल डिजिट नंबर्स हो तो डबल डिजिट नहीं, फिर नहीं लोगे ना बेटा. अब मैंने आपसे देखो यही आपसे बोला है, आप ध्यान रखना है कि आपको ए और बी क्या दे. अगर डबल डिजिट होगा तो 101% वो यूनिवर्सल सेट देंगे ही, क्योंकि वो आपको अलग लेके जा रहे हैं बेटा. लेकिन नंबर्स नहीं, नंबर्स हैं सिर्फ ये, मतलब नॉर्मल सिंगल डिजिट नंबर्स हैं ये. तब इसका वो जानबूझ के करते हैं बेटा, स्पेशली जेई में बोल रहा हूँ बेटा. हो सकता है सीबीएसई में ना मिले ऐसा केस, वो यू देंगे ही देंगे, लेकिन जेई में वो जानबूझ के करते हैं, सिंगल डिजिट देते हैं और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन आपसे, और लेकिन यूनिवर्सल सेट नहीं है. तो वहां जब आप पढ़ते हो या समझते हो या जो भी टीचर से आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको फिर भी बताता है कि अगर मेंशन नहीं है तो इट मींस आपका जो यूनिवर्सल सेट है यू हैव टू कंसीडर दैट 0 to 9. दिस इज द यूनिवर्सल सेट.
एक्चुअली फॉर डिजिट्स, यही डिजिट्स अवेलेबल है। अभी आप चैप्टर 9 पढ़ोगे, उसमें भी बोलेंगे कि आप 2 डिजिट नंबर बनाइए, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से बनेंगे? 0 to 9 से बनेंगे, ठीक है ना। वो स्पेसिफिकली देंगे नहीं आपको कि यही डिजिट यूज करने, वो आपसे कहेंगे 2 डिजिट फॉर्म करो, कितने डिजिट बन सकते हैं, तो 0 to 9 से आपको बनाना दो, क्योंकि यूनिवर्स में मेरे पास अवेलेबल डिजिट यही है, इन्हीं को यूज करके आपको नंबर्स बनाने हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस तरीके से। बट इस केस में अगर 2 डिजिट नंबर देते हैं तो यूनिवर्सल, ये जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसमें यूनिवर्सल सेट का रोल होता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यू माइनस ए, तो वो यू को स्पेसिफाई करेंगे स्पेशली, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। Okay, sir. नाउ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट बेटा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 4 5 6 7 8 9, राइट। नाउ व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट बेटा? What is B complement? 0 1 2 6 7 8 9, right? RHS is the intersection between complement. So now A complement intersection B complement, इन दोनों में कॉमन निकालो बेटा। एक तो 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, आफ्टर दैट we have 6 7 8 9, and this is your RHS, and check करो, देखो LHS is this and RHS is this, both are same, LHS equal to RHS, hence verified. So De Morgan's first law verified. Similarly, you can verify A intersection B complement equal to A complement union B complement. So A complement is already given, B complement is already we have. We don't have A intersection B. So first we find A intersection B. What is the common between A and B, beta? This is only 3. 3. 3. And this implies A intersection B complement equal to, this is what, except 3. So 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? This is the LHS part. Now RHS is the union between these two. So A complement union B complement equal to, बोलो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करते हैं तो वी हैव 0 कॉमन, 1 कॉमन, 2 भी इसमें मिक्स करो, देन 4 लिखो, 5 6 7 8 9, राइट, एंड विच इज इक्वल टू योर LHS, सो हेंस वेरीफाइड। बोलो क्लियर हुआ बेटा ये वेरिफिकेशन? Yes, sir. ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस बेटा टुडे यू हैव टू ट्राई एक्सरसाइज 1.5। ध्यान रखना बेटा, आज आपको 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करना। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर बेटा? ट्राई करना, जो डाउट होगा डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में आपसे मतलब इंस्ट्रक्शन भी दूंगा कि डोंट एब्सेंट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पर्पस आल्सो एंड फॉर 12th पर्पस आल्सो एंड सम ऑफ द टॉपिक ऑफ क्लास 11th आल्सो। सो अगर आप मेरे साथ रहोगे नेक्स्ट क्लास में, एब्सेंट नहीं होगे, तो यू विल लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, दिस द 6th एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और आप कभी नेक्स्ट मतलब 2-4 साल में जब जॉब्स के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो उसमें भी इसके टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली दिस इज द टॉपिक विच इंक्रीज योर IQ बेटा, और IQ बढ़ेगा आपका तो आप बहुत सारे कंपटीशन को क्रैक करने लायक हो जाओ। ठीक है बेटा? 1 second, don't leave. Anyone who has joined late and not informed me बेटा, please inform me. आप मुझे हमेशा बीच में ही रोक के इन्फॉर्म किया करो जो 2-4 मिनट लेट आते हैं। Anyone here who have joined late बेटा? सर देवांश सर श्रेयांश Sorry, देवांश, एक सेकंड। सर श्रेयांश